स्टार्ट करतो. Okay, so last time we started the factor affecting the resistance. Okay, so what are that factor? चला परत एकदा थोडा रिवाइज करून घेऊ द्या. येस, बोला पटापट. कारुण्य बोले बेटा. Length of the conductor. Area of Yes. cross. Length of the हाँ. conductor. ओके, पहला है लेंथ ऑफ Temperature. कंडक्टर. लेंथ ऑफ कंडक्टर. Area of cross section. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर. एरिया ऑफ Type of क्रॉस material. सेक्शन. टाइप और नेचर ऑफ Temperature. मटेरियल. नेचर ऑफ Temperature. मटेरियल. नेचर ऑफ मटेरियल. Temperature. And Temperature. the fourth one is temperature. Okay, I think we have discussed all these factors in the previous lecture. We are going to focus on this. How does the temperature dependence, okay, how does the resistance depend on temperature? So resistance dependency on temperature. Sir, please mark me present. Tanmay, I got disconnected due to net हाँ issue. लगा है, तन्मय पूर्ण लगा दी. Okay, resistance dependency on temperature. So last time I told that if we are taking a metal, कोई भी अगर metal लिया, okay, तो metal का property क्या, जैसे हमने Ohm's law में देखा कि by keeping the physical state of conductor remains constant, the potential difference applied between the two ends of conductor is directly proportional to the amount of current flowing through it. Understand? लेकिन एक कब possible है? V is directly proportional to I if the temperature of the conductor remains constant. अगर आप रीडिंग लेते लेते ओम्स लॉ परफॉर्म कर रहे हैं और रीडिंग लेते समय अगर वो कंडक्टर वायर गर्म होगी तो उसका रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है. अंडरस्टैंड? तो मेटल में क्या होता है, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा. अगर टेम्परेचर कम किया तो रेजिस्टेंस भी कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो कंडक्टिविटी भी मोर. ऐसे आपको याद रखना है. ओके, और जो सेकंड था सेमीकंडक्टर जो थे, सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है. सेमीकंडक्टर में क्या होता है, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस डिक्रीजेस. अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया तो दे बिकम अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, एज द टेम्परेचर डिक्रीजेस the normal temperature पे they act as an insulator. Okay, so resistance increases. These are few points. And what about the alloys like Constantan, manganese and nichrome wire? How No can we tell? Yes, No beta. change. No change in No temperature. change. Madhvi, yes, no change in the resistance. So मटेरियल, क्योंकि मैं ये इसलिए दोहरा रहा हूँ कि इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं. अभी जो सीबीटी होने वाला है 13 तारीख को, तो उसमें मैंने आपको बोला था आई थिंक लास्ट टाइम कि जो सिलेबस है वो पेज नंबर आई थिंक 20 तक आएगा. ओके, लेट मी रिवाइज यू. हाँ, आ गया ना, 20 तक है बराबर, आपको सिलेबस भी आ गया है. तो मटेरियल लाइक निक्रोम, किससे बनता है निक्रोम? निकोलाइन क्रोमियम, देन Constantan and manganese and copper, manganese. All these are the alloys. Okay, इसमें क्या होता है कि resistance does not change very much. Resistance does not change with increasing temperature. Does not change with increasing temperature. ओके, तो यहाँ तक हमने थोड़ा हो गया था. अभी देखते हैं कि जो फॉर्मूला है रेजिस्टेंस वेरिएशन विथ टेम्परेचर,
or we can say that variation of resistance with temperature, that is the resistance depending on temperature. Suppose if R0 is the resistance of a conductor at 0 degree Celsius. यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस लेने वाला है, केल्विन नहीं, तो गलती से आप केल्विन कर दोगे. 0 केल्विन टेम्परेचर मेंटेन करना बोले तो सुपर कंडक्टर हो जाएगा वो. अंडरस्टैंड? तो इट इज नॉट पॉसिबल. तो 0 डिग्री सेल्सियस एंड RT be the resistance of a conductor at T degree Celsius. Then increase in temperature, increase in resistance or change in resistance. सर तो तुमचा RT व्हिडिओ तसाच हँग झालाय, म्हणजे आवाज एकदम क्लिअर येतो पण व्हिडिओ नाही हाँ, सर सर. तेरा नेट में प्रॉब्लम होगा बेटा, तेरा नेट में प्रॉब्लम होगा. मेरे तो यहाँ पे लैपटॉप पे ठीक दिख रहा है, मुझे क्लियर दिख रहा है. तो RT माइनस R0 क्या है? दिस इज द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस और चेंज इन रेजिस्टेंस is directly proportional to the original resistance at 0 degree Celsius into change in temperature, that is delta T. Okay, तो delta T को कैसे लिखेंगे? delta T is equal to T minus 0. तो T क्या है? T is the final temperature of conductor and 0 क्या है? Initial temperature at 0 degree Celsius. वो आपको कंसिडर करना है. तो delta T can be taken as T minus 0 or simply T. राइट साइड का रब करूं क्या? ये एवरीवन हैज फिनिश दिस? इसको लिख लिया अच्छी तरह? यस सर. सर 1 मिनिट सर 1 मिनिट. स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने लास्ट टाइम करवाया. आप क्या करो, हो गया. हाँ, आप नोट्स बनाने की आदत डालो, खुद नोट्स बनाओ. राइट, जो भी स्क्रीनशॉट आप लेते हो व्हाइट बोर्ड का, तो आप बाद में उसको फेयर करके अच्छी तरह नोट्स बनाओ और मेरे इसमें डाल दो. आप गूगल क्लासरूम में डाल दो कि सर ये मेरा नोट्स है, देख लो एक बार. देन आई विल गो थ्रू इट. सर फिर आप असाइन कर दो ना. हाँ, सो RT माइनस R0. ओके, अभी देखो बच्चों, यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर मुझे निकालना है तो क्या करते हैं हम लोग फिजिक्स में? कांस्टेंट डाल So देना. proportionality हाँ, constant. तो वी आर टेकिंग सम कांस्टेंट. ओके, एंड दैट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय original resistance at 0 degree Celsius into change in temperature. Okay, so this constant can be taken as alpha into R0 into delta T. This is RT minus RD0. चलो अभी इसको लिखते हैं. What is alpha? Where alpha is equal to coefficient of temperature coefficient of resistance. It is the temperature coefficient. This coefficient Yes. will be different for every material. No? Yes, but it is different for different material. Correct. Coefficient of temperature, coefficient of resistance is different for different material. Right? जैसे कि जो गुड कंडक्टर होगा उसका कोएफिशिएंट क्या होगा? अल्फा का वैल्यू कम होगा. जितना वो ज्यादा इंसुलेटर फॉर्म में होगा उसका कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. ओके, जैसे कि आपको पता है सिल्वर मेटल जो है, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो जिसका रेजिस्टेंस कम होता है, तो रेजिस्टेंस कम मतलब टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी कम होगा. ओके, चलो, कैन वी मेक द फॉर्मूला फॉर अल्फा? तो अल्फा कैन बी रिटन एज, yes Madhvi, tell me how can we write the expression for alpha? Coefficient of temperature, RT coefficient of minus resistance. RO by RT RT minus minus RO RO upon R0 upon हाँ, delta T. delta T. Okay, this is the formula. चलो अब इसका यूनिट बनाते. SI unit of alpha is equal to, अभी change in resistance का यूनिट क्या बनेगा? What could be the unit for change in resistance? SI unit? Ohm per meter. Yes. Ohm meter. Hello. No, only ohm. Only ohm. Change in resistance will be ohm only. Okay.
divide by what is the unit for original resistance? Ohm. 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 Into what is the unit for this per Celsius? Sorry, it is Second. Celsius or Kelvin. Okay, Kelvin. so degree Kelvin. Celsius or Kelvin or Kelvin. तो बच्चों यहाँ पे ओहम ओहम कट हो जाएगा. तो what is the left? SI unit of alpha is equal to per degree Celsius or per degree Kelvin. Degree Per Kelvin. Kelvin, not degree. One- Kelvin को कभी डिग्री नहीं one बोलते. Kelvin को डिग्री नहीं बोलते. It is only Kelvin. Okay, it is Kelvin only. Per Kelvin Okay. or per degree Celsius. Right? Okay. तो इसको लिख लो अच्छी तरह. अच्छा, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं हम लोग. चलो इक्वेशन नंबर 1 दे दे इसको. Give equation 1. From 1 we can write. From equation 1 we can write. क्या लिख सकते हैं? ये जो सर अल्फा R0 की है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. वो भी सब करते हैं या फिर R0 को राइट साइड में लेके जाते हैं. शिफ्टिंग दिस R0 ऑन द राइट हैंड साइड. तो हाउ कैन यू राइट द रेजिस्टेंस एट द टेम्परेचर T? Registered at a particular temperature. Alpha RT. Alpha into R0 2 delta T. R0 into delta T. R0 plus alpha into R0 into change in temperature delta T. Okay, तो यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा? We can take common R0 can be taken common R0 into bracket 1 plus Alpha. alpha into delta T. Delta T. Okay, this is the formula for the resistance of a conductor at any given temperature. कोई भी अगर टेम्परेचर का निकालना होगा, राइट, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. अगर रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस दिया है, अल्फा का वैल्यू दिया होगा और इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर दिया होगा, तो हम यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस ले सकते हैं. ओके, एवरीवन गॉट दिस कांसेप्ट? यस बेटा, बोलिए. Yes, So sir. what do we take in place of delta? डेल्टा मतलब यस, डेल्टा विल बी written like this. Delta T is equal to final temperature minus initial temperature. ओके, या फिर फाइनल टेम्परेचर हम यहाँ पे स्मॉल टी लेते, जिसका हमको रेजिस्टेंस निकालना है. आरटी मतलब रेजिस्टेंस है टेम्परेचर टी. हो सकता है 300 केल्विन दिया होगा, 320 केल्विन दिया होगा, 310 केल्विन दिया होगा, जो भी केल्विन दिया है वो निकालना है यहाँ पे, वो लेना है. राइट, दो टेम्परेचर लेना है. टी माइनस इनिशियल टेम्परेचर यूजुअली हम 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं यहाँ पे. R0 का मतलब होता है द रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पे T माइनस 0 आएगा, डेल्टा T. गॉट इट? Yes. कुछ न्यूमेरिकल में, सम न्यूमेरिकल में आपको टेम्परेचर डिफरेंस दिया जाएगा. इन द सम न्यूमेरिकल यू मे गेट द फाइनल टेम्परेचर एंड इनिशियल टेम्परेचर दिया जाएगा. एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? Yes or no? Sir, why you only took alpha as the मतलब कोई जो कांस्टेंट लेना था वो अल्फा बीटा गैमा ऐसा लेते हैं. अभी यहाँ पे टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा दिया है ना, वो सब लोग यूज करते हैं. कॉमनली साइंटिस्ट लोगों ने डिसाइड किया अल्फा लेते. आप बीटा भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पे अल्फा लिया. अभी तो आपको पता है, अभी जो अलग अलग कोविड के वेरिएंट आ रहे हैं, याद है आपको? तो कोविड के वेरिएंट को भी नाम दिया उन्होंने, अल्फा बीटा गैमा. अगर आपने न्यूज देखा होगा तो समझ में आया. जो साउथ अफ्रीका का कोविड है उसको, उसका वेरिएंट को अलग नाम दिया. यूके का कोविड है उसको अलग नाम दिया. इंडिया का कोविड उसको अलग नाम दिया. मतलब डेल्टा दिया हमने गया है. इसको खाली कंसीडर किया है कांस्टेंट के लिए, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है. सिंबल है, इट जस्ट सिंबल, इट इज जस्ट सिंबल, नथिंग एल्स. ओके, हो गया? नोट डाउन कर लिया? यस और नो? सर बोलिए. सर जैसे हमको पता है कि न्यूटन ने मतलब ग्रेविटी डिस्कवर की है, बराबर? हाँ, तो सर उसने मतलब एप्पल ऊपर से नीचे गिर रहा है और उसको देखते देखते पता चल गया कैसे ग्रेविटी. उसके मन में नाम आ गया ग्रेविटी, तो रख दिया क्या नाम? हाँ, इसलिए लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोल दिया उसको. ओके, नेक्स्ट है सुपर कंडक्टर. पता था क्या मैंने सुपर कंडक्टर का लास्ट टाइम? यस और नो? Yes, sir. कुछ Yes, अलग sir, आपने अलग अलग बताया था. लेड का बताया था, मर्क्यूरी का बताया Yes, था sir. You have टेम्परेचर, given the है ना? list. तो वो जो टेम्परेचर है ना, जैसे कि 4.2 केल्विन है, नियोबियम. टेम्परेचर, उसको वो टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं. व्हाट यू कॉल दैट? क्रिटिकल टेम्परेचर. ओके,
Yes, sir, you told. जो भी मटेरियल, the material which shows the superconductivity property at a certain temperature, certain minimum temperature, that certain minimum temperature is known as critical temperature. Okay, याद रहेगा? Yes, sir. Okay, इसके जो uses है, what could be the uses of superconductor? क्या होगा? Yes, सुपर कंडक्टर यूज मैंने बताया था लास्ट टाइम. सुपर कंप्यूटर मतलब क्या Sir, कि जो कंप्यूटर का स्पीड ज्यादा होगा, टू इंक्रीज द स्पीड, है ना, उसके लिए sir, सुपर they are used to कंप्यूटर. make. Sir, they are used to Yes. make strong electromagnets. यस, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट, एब्सोल्युटली करेक्ट. वेरी गुड, वेरी गुड. और बोलो माधवी. Superconductors are used for transmission of electric power. यस, इलेक्ट्रिकल पावर में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ट्रांसमिशन ऑफ द पावर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, लॉट ऑफ मतलब वहाँ पे एनर्जी लॉसेस बहुत होता है. अगर एनर्जी लॉस कम करना है, राइट, तो वी कैन यूज दी सुपर कंडक्टर वायर और सुपर कंडक्टिंग मटेरियल ओके यूज कर सकते हैं, Sir, राइट. they are used बोलिए. in material science research. मटेरियल साइंस, इन एनर्जी पार्टिकल फिजिक्स. ओके, तो ये सब यूजेस है सुपर कंडक्टर के. तो अगर इस पे क्वेश्चन आया तो आपको सॉल्व करते आना चाहिए, राइट. मैं अभी इसको लिख के नहीं दूंगा, सब नोट्स में दिया है, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने वाला हूँ. चलो फर्स्ट न्यूमेरिकल लेते. पहला न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करते. पहला न्यूमेरिकल है, आपके पास है, मॉड्यूल है सबके पास? डू यू हैव मॉड्यूल विद यू? Yes. ओके फाइन. तो पहला न्यूमेरिकल लेते. फाइंड अ स्पेसिफिक सर रेजिस्टेंस नहीं है. of a wire of length 1.1 मीटर. जो सॉफ्ट कॉपी है ना, जो सॉफ्ट कॉपी रेजो सर, उसमें आपको मिल जाएगा. ठीक है, आप एक नंबरिंग डाल के रखो, मैं डायरेक्ट गिवन लिखता हूँ. ओके, गिवन क्वांटिटी लिखता हूँ, गिवन. हाँ सर, यहाँ मतलब पे मैं क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे नंबरिंग देता हूँ और आप हाँ, जो numbering, material हाँ. लिखते हो, मैं ओके, लिखता फाइंड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ. लेंथ दिया है, लेंथ इज इक्वल टू 1.1 मीटर. तो यहाँ पे मीटर जो है एसआई यूनिट है, यहाँ पे कन्वर्जन की जरूरत नहीं है. एंड 0.4 मिलीमीटर इन डायमीटर. तो डायमीटर दिया यहाँ पे, डायमीटर डी इज इक्वल टू 0.4 मिलीमीटर. ओके, एंड हैविंग अ टोटल रेजिस्टेंस आर इज 4.2 ओहम. तो क्या करने का, फिजिक्स में जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो पहले जो गिवन लिखा है, वेदर ऑल दिस गिवन क्वांटिटी आर इन द सेम सिस्टम ऑफ यूनिट्स और नॉट. ओके, तो कारुण्य बताओ, अभी ये जो डायमीटर दिया है 0.4 मिलीमीटर, इज इट इन एसआई यूनिट मिलीमीटर? हूँ. नो सर. हाँ, तो बताओ मुझे, अभी इसको मीटर में कन्वर्ट करना है. 4 into 10⁻⁴ कितना होगा? -3. -4. Sir, -4. -3. माधवी कितना होगा? माधवी कितना है? -4. सर -3 हाँ. रहेगा. -4 आएगा. कौन है यहाँ? सर अगर -3 -4 आया वाला तो कौन? 0.4 लिखना पड़ेगा. एक कौन है -4 वाला? आंसर कौन दे रहा है अभी जो बॉयज में बोला -4? हेलो, सोम पाटिल. सोहम पाटिल. ओके, और दूसरा एक लड़की ने भी आवाज दिया -4 वाली. क्या नाम है बेटा माधवी. आपका? माधवी. माधवी. करेक्ट, बोथ आर करेक्ट. तो बच्चों यहाँ पे देखो, ये 0.4 है, राइट. इसको हम कैसे लिखेंगे? 0.4 मल्टीप्लाइड बाय, अभी मिलीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो दिस विल बी 10⁻³ होगा. वापस मुझे ये 0.4 भी नहीं चाहिए. मैंने क्या किया, यहाँ पे होल नंबर लिखा है, अच्छा. 4 into. ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा तो -4 मीटर आएगा. तो ऐसे सिली मिस्टेक हम कर बैठते हैं एग्जाम में. कारुण्य, यस और नो? हाँ सर. यस हाँ सर. सर. तो ऐसे सिली मिस्टेक की वजह से आपका आंसर रॉन्ग हो जाता है. सर ये क्वेश्चन किस पेज नंबर पे है? पेज पे, हाँ, पेज नंबर है बेटा मेरा 14 पेज नंबर है. 14 पेज लेकिन पे. सर ये 14 पेज. डायमीटर दिया है ना, तो हमें ये निकालना पड़ेगा रेडियस. जरूरत नहीं बेटा, मैं बताता हूँ, वो भी फॉर्मूला बताता हूँ. ओके, चलो कैसे सर. सॉल्व करते हो वो भी बता. हाँ बोलिए, बेटा माधवी बोलिए. सर, जब रेडियस निकालने से अच्छा हम डायरेक्टली डायमीटर को अपॉन 2 कर लेंगे ना क्वेश्चन में. यस. अभी देखो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज इक्वल टू क्या है?
pi r square. Is it correct? Pi r square, right? तो हमको पता है Yes. कि what is the relation between diameter and radius? D is equal to 2 times radius. 2 times Yes r. or no? हाँ. तो बच्चे Yes. यहाँ पे r है, तो r can be written as d by 2, half of the D by diameter. 2. T by 2. So we can make the formula for area of cross section of wire in terms of diameter rather than radius, because in this numerical they have given direct diameter. Okay, Yes, sir. तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? Pi- This can be written pi as d square pi upon 4. into d by 2 whole bracket square. So this will be Yes. pi Pi d into square d upon 4. square upon 4. Can we write like this area, Karunya? Hello. Yes, yes, yes. हाँ, तो एरिया हमने ऐसा लिखा है. अभी जो फॉर्मूला है क्या पूछा उन्होंने? व्हाट दे आस्क्ड टू फाइंड? दे आस्क्ड टू फाइंड द रेजिस्टिविटी. तो रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रो इज इक्वल टू, यहाँ पे रो को क्वेश्चन मार्क करो, राइट. रेजिस्टिविटी निकालना है, दैट इज कैपिटल R इंटू एरिया डिवाइड बाय लेंथ. दिस इज द फॉर्मूला. ओके, तो रेजिस्टेंस R मल्टीप्लाइड बाय पाई इंटू डी स्क्वायर डिवाइड बाय, ये 4 नीचे आ जाएगा, L इंटू 4. कैन वी राइट लाइक दिस? एनीबडी डाउट? पूछ लो अभी से. नहीं सर, हाँ, हमें सर. लिख सकते हैं, बराबर है. किसी को डाउट है? किसी को समझ में नहीं आया? ऐसा बोलो. किसको नहीं समझ में आया? समझ गया सर. एवरीवन हाँ, सर. अंडरस्टूड? कितने लोग हैं आज? Yes, sir. 50. अरे आज इतना स्ट्रेंथ क्यों कम है? Yes, sir. 48 पीपल. तो रो इज इक्वल टू, चलो अभी सब्स्टिट्यूट करते हैं. सब्स्टिट्यूटिंग ऑल द वैल्यूज. रेजिस्टेंस कितना है? 4.2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय डायमीटर. डायरेक्ट हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. 4 इंटू 10⁻⁻⁴, उसका स्क्वायर 4 इंटू 10⁻⁻⁴ होल ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइड बाय लेंथ इज आल्सो गिवन 1.1 multiplied by 4. So we can do like this: 4.2 into 3.14 multiplied by 60. सर पाई की बोलिए. वैल्यू 3.14 है ना? 3.1 टाकली ना 4.4. सर सॉरी, 4 into 8 1. भी सर. हाँ, तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16. इसको सॉल्व करो आप लोग एंड गेट द आंसर. 16 the 48 Just a something, second. 48 something आएगा. 48 into 10⁻² -8. What is the unit, कारुण्य? यूनिट क्या होगा? ओहम मीटर. ओम ओहम मीटर. मीटर. ओहम मीटर. 10⁻⁸. ओहम मीटर. This is the first numerical. Solve it properly. अच्छी तरह सॉल्व करो, सिस्टमेटिकली, स्टेप बाय स्टेप. बेटा अभी जो चल रहा है ना वो कर रहे हैं. एक काम करो, यू कैन आस्क आफ्टर दी 7:30 के बाद मुझे कोई डाउट पूछो, क्योंकि अभी ये मेरा रह जाएगा फिर. आयुष, यू हैव एनी डाउट इन द मॉड्यूल? आयुष? No, sir, I don't have any doubt. I just wanted to ask that what is this बोलिए. question number in the book? अच्छा, क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन 11 है शायद, पेज नंबर 14. पेज 14. पेज 14. Now illustration 12. Page 15. मतलब वही 47.92 आ रहा है. 47.92. चलेगा चलेगा चलेगा. मतलब 48, approximately 48. चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल. A wire of resistance 4 ohm is redrawn by pulling it double. मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया है. व्हाट इज इट्स न्यू रेजिस्टेंस? एक वायर लिया है. इनिशियली उसका वायर का जो लेंथ है वो हम L1 लेते. इसका रेजिस्टेंस आएगा R1 इज इक्वल टू R विच इज 4 ओम. और ये वायर को डबल किया अभी. वायर मेक इट डबल, तो L2 इज इक्वल टू 2 times L1.
what could be the resistance? आप don't refer the module पे मत देखो, just see the problem. Okay, तो क्या नाम है, अमन मिश्रा, can you hear me अमन? अमन, Yes, sir. हाँ, अभी देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो वायर का, जब लेंथ L1 इज इक्वल टू L लिया मैंने, L1 इज इक्वल L लिया, तब रेजिस्टेंस 4 ओम था. अभी वो जो लेंथ ऑफ वायर है उसको डबल किया, खींच के उसको डबल किया, द वायर जस्ट स्ट्रेच डबल. तो व्हाट यू थिंक, द रेजिस्टेंस बढ़ेगा या कम होगा? रेजिस्टेंस बढ़ेगा. रेजिस्टेंस बढ़ेगा. ओके फाइन, चलो. तो यहाँ पे मुझे बताओ कि कैसे सॉल्व करें इसको, हाउ कैन वी सॉल्व दिस? सर हम एक्चुअली उसको पुल किया गया, इसलिए वॉल्यूम ऑफ वायर विल रिमेन सेम. Yes, correct. Okay, so while pulling the wire, while pulling or stretching the wire, the volume of wire remains constant. Volume of wire remains constant. So Madhvi, what is the formula for volume of wire? Area into length. Area into length. So A1 L1 लिया, area A2 into L2. Both the volumes are equal. यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है, R2 निकालना है, राइट? लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया है, फॉर्मूला भी यहाँ पे करेंगे. वायर का A1 का क्या आएगा, पाई R1 स्क्वायर. ओके, so pi R1 square into L1, which is equal to pi R2 square into L2. Sir, so Okay. it will be सर हम pi इसको डायरेक्टली भी pi कर into सकते हैं 16. ना कि मतलब L2 इज इक्वल टू 2L1 डालेंगे और फिर इसको कैंसिल कर देंगे. L2 इज इक्वल टू 2L1 की वैल्यू डालेंगे. हाँ, ओके. और A2 का क्या करोगे? A2 और सर उसका रेशो लेंगे फिर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू हाँ सर, आ जाएगा. 1 अपॉन 2 ऐसे. और फिर सर, यहाँ पे क्या R1 पूछा उन्होंने R2 पूछा ना, R2 पूछा ना सर, यहाँ तो पे. अगर हम लोग R1 की वैल्यू डालेंगे और L2 की जगह पे L1 2 टाइम्स L1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो फिर भी आंसर आ जाएगा. यस ठीक है, चलो आप आपके हिसाब से आप सॉल्व करो, मैं मेरे हिसाब से सॉल्व कर दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, आंसर आना चाहिए बस. चलो यहाँ पे पाई निकल जाएगा, फिर आएगा R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर इज इक्वल टू L2 अपॉन L1. लेकिन L2 कितना है, 2 टाइम्स L1, 2 टाइम्स L1 डिवाइड बाय L1. L1 कट हो जाएगा तो इस आ जाएगा 2. सो R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 लेंगे. अभी जो फॉर्मूला हमारा, फॉर्मूला क्या है रेजिस्टेंस का, R1 इज इक्वल टू रो टाइम्स L1 टाइम्स L1 अपॉन A1. ओके, और R2 इज इक्वल टू रो टाइम्स L2 अपॉन A2. ओके, तो यहाँ पे अगर R2 अपॉन R1 दिया, R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू रो टाइम्स L2 अपॉन L1, सॉरी A2 डिवाइड बाय, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे. तो रेसिप्रोकल क्या आएगा R1 का, A1 अपॉन रो टाइम्स L1. ओके, तो यहाँ पे रो कट हो जाएगा, फिर क्या बचेगा, व्हाट विल बी लेफ्ट, R2 अपॉन R1. L2 into A1 upon A2 into L1. हाँ, L2 अपॉन L1 मल्टीप्लाइड बाय A1 अपॉन A2. अरे हाँ, यहाँ पे R1 R2 की जरूरत ही नहीं, सीधा इसका भी रेशियो लिया तो भी चलेगा, बराबर. करेक्ट, डायरेक्ट आ गए. चलो आगे का सॉल्व करो, अब मेरी राह मत देखो, जिसको भी अगर आ रहा है तो आप सॉल्व कर सकते हैं एडवांस में. तो R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू L2 कितना है, 2 टाइम्स L अपॉन L इंटू A1 अपॉन A2. अभी यहाँ पे अगर A1 अपॉन A2 लिखना है तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1. ओके, सो 2L अपॉन L कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, तो आ जाएगा 4, राइट.
तो R2 इज इक्वल टू R1 मल्टीप्लाइड बाय 4 विच इज इक्वल टू, लेकिन R1 दिया है 4 into 4 विच इज 16 ओम। आ गया सबको समझ में? एवरीवन गॉट दिस? सर एकदा एक्सप्लेन करा ना परत. काय नाव बेटा आपलं? काय नाव? रितिका? सर समीक्षा. समीक्षा देखो बेटा, इनिशियल लेंथ ऑफ द वायर इज कैपिटल L, L1 इज इक्वल टू L घेतलं, R1 इज इक्वल टू 4 ओम. We just stage the wire, the length become double the original 2 times L1. So what could be the resistance? Okay, then when we are pulling the wire or stretching the wire, the volume of the wire remains constant. And formula for अभी wire जो है, wire का जो shape है वो cylindrical form में होता है. Wire it is in the form of cylindrical. Yes or no? Yes sir. तो यहाँ पे इसका ये लेंथ लिया और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आएगा तो एरिया इनटू लेंथ दैट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. एरिया इनटू लेंथ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. तो यहाँ पे आएगा इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द वायर A1 into L1 which is equal to final area into final length. And then from this we can write, अभी यहाँ पे एक बना सकते हैं हम लोग, तो A1 upon A2 is equal to L2 upon L1, ये रेशियो ले सकते हैं, राइट? अभी ये स्टेप की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट अभी यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे. तो R1 कैन बी रिटन एज रो इंटू L1 अपॉन A1, R2 कैन बी टेकन एज रो इंटू L2 अपॉन A2. अभी जो हमेशा याद रखना, जो क्वांटिटी निकालनी है और रेशियो लेना है तो पहले इसको न्यूमरेटर में ले लो, क्योंकि R1 पता है तो उसको न्यूमरेटर में लेना है, और जो निकालना है उसको न्यूमरेटर में लेना है, इसको डिनोमिनेटर पे. तो R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू रो टाइम्स L2 अपॉन A2 मल्टीप्लाइड बाय, इसको अगर डिवाइड किया तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, तो A1 अपॉन रो इंटू L1. तो यहाँ पे रो कट हो जाएगा, L2 अपॉन L1, A1 अपॉन A2 एंड जस्ट सब्स्टिट्यूट इट. गॉट इट बेटा? समीक्षा? Yes sir. चलो नोट डाउन कर लो. चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल इल्यूस्ट्रेशन 13. Sir, बोलिए. sir, I'm not able to see the left side of board. नेट का प्रॉब्लम होगा बेटा, आपका नेट का प्रॉब्लम होगा. मतलब देख, क्या क्यों नहीं दिख रहा है, क्या प्रॉब्लम है? हेलो कारुण्य, Sir, blur दिख रहा है, blur दिख रहा है. मुझे तो लैपटॉप पर क्लियर दिख रहा है. मुझे एनीबडी फाउंड No डिफिकल्ट sir, टू सी? clear है. नो सर. बट No. नेट का स्लो हो गया होगा, आपका नेट स्लो होगा कारुण्य, नेट स्लो होगा. So illustration 13, look at the figure. A wire of radius, यहाँ पे radius दिया है R is equal to small r लेते हैं, R resistance हो जाएगा. Radius को हम small r लेंगे क्योंकि capital R can be taken as resistance. Small r is equal to 0.35 millimeter, has a length of 2.2 centimeter. Length is 2.2 centimeter. It is made up of a material of specific resistance. Rho is equal to 1.4 into 10⁻⁻8 ohm meter. Find the resistance of wire R. बहुत सिंपल है. Without seeing from the module पे मत देखो and just try to get the answer. चलो, it is your task. मैं नहीं सॉल्व करने वाला. Yes sir. आपको सॉल्व करना, आप लोग करो, तब तक मैं अटेंडेंस लगा लेता हूँ. क्यों कम क्यों हो रहा है? सोहम पाटिल प्रेजेंट है, तन्मय पुन भी प्रेजेंट है. वैदिक Sir, गोसावी वो- आएगा? वैदिक गोसावी एक बेटा, ये रेडियस है. 0.35 mm is radius. हाँ, वही. हाँ, Thank you sir. उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. आशीष शेवाळे आहे का? आशीष शेवाळे प्रेजेंट सर. अरे वाह. अवधूत पाटील प्रेजेंट. दर्शन माले का? दर्शन माले नहीं है.
Himanshu Airav, is Himanshu Airav present? Josh Sisude, Josh. Kaushik Ratnaparki, Kaushik. खुशी कुचेरिया, खुशी, कृष्णा मोरे, कृष्णा मोरे आएगा, मोक्षद पाटिल प्रेजेंट। काल होता का बेटा? मोक्षद काल होता? हेलो मोक्षद, पार्थ आहिरे, कैन यू हियर मी? पार्थ आहिरे, हेलो, व्हाट इज द आंसर? आ गया आंसर? शुभम गुले आहे का? शुभम, सर ती लेंथ 2.2 है ना कि 22 है? हेलो सर, हाँ बोलिए। लेंथ 2.2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। 2.2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है। हाँ। चलो सॉल्व करते हैं। पहले सबसे पहले यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन पहले करने का, देन यू हैव टू प्रोसीड फर्दर। ओके, तो यहाँ पे जो रेडियस दिया है उसको मीटर में करना है, तो मैं डेसिमल भी हटा दूंगा, तो आई कैन राइट 35 into 10⁻⁵ कितना आएगा? -5, करेक्ट, -5 मीटर। ओके, और ये जो लेंथ है, दिस लेंथ विल बी 2.2 into 10⁻² कितना आएगा मीटर में? 22 हाँ 22 कितना आएगा बेटा? into 10⁻⁻²। 22 अगर 22 लिखा तो 10⁻⁻³ -3 आएगा, 2.2 लिखा तो -2 आएगा। ओके, चलो, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास R इक्वल टू रो इनटू L अपॉन एरिया। एरिया। सर जो रेजिस्टिविटी है ना वो ओम सेंटीमीटर में दी हुई है। We have to convert it into ohm meter. ओके, जस्ट चेक, लेट मी चेक, जस्ट लेट मी चेक। ओ ओम सेंटीमीटर है, ठीक है ठीक है, उसको मीटर में करना पड़ेगा। सो दिस विल बी 1.4 into 10⁻⁻, कितना आएगा? 10 -10। तो रो इंटू एल अपॉन ए, तो रो कितना दिया है? 1.4 into 10⁻⁻10 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ इज 22 into 10⁻⁻3 डिवाइड बाय एरिया जो है पाई आर स्क्वायर आएगा, तो पाई मतलब एरिया इज पाई आर स्क्वायर, तो 3.14 into रेडियस स्मॉल आर 35 into 10⁻⁻5 होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करने का? 1.4, इसको भी ये कर लो, 14 into 22 into इसका 10⁻⁻1 इसको ऐड हो जाएगा, तो 10⁻⁻11 हो जाएगा, और ये -3, तो -11 -3 10⁻⁻40 डिवाइड बाय, ओके, 3.14 into 35 का स्क्वायर कितना आएगा? 12,225, यस और नो? यस सर, बराबर। 1225 -10। अभी सॉल्व करो इसको, आंसर आएगा। एट इंटू 10⁻⁻6 आएगा आंसर। एक बार वेरीफाई कर लो आंसर, कैलकुलेटर से कर लो, हो सकता है टेक्स्ट बुक में कभी कभी रॉन्ग भी होता है। सर वो थोड़ा मतलब राउंड ऑफ है वो। सर वो, हाँ बोलिए। वो -6 से -5 होगा शायद सर, वो वो 0.8 होगा बेटा। -5 क्यों आएगा? 0.8 into 10⁻⁻5 आएगा। 0.8 into 10⁻⁻5, ये तो मैंने यहाँ पे 8 into 10⁻⁻6 कर दिया। यस सर। आप चेक करो, डायरेक्ट आंसर मत देखो, बुक में सॉल्व करो, उसको कैलकुलेट करो, मोबाइल से करो।
यूज कैलकुलेटर। समझ में आ रहा है सबको? फिर न्यूमेरिकल्स, क्योंकि बच्चे के न्यूमेरिकल्स में मार जाते हैं। अमन मिश्रा, यस और नो? अमन, अमन। सर मेरी वैल्यू Yes, sir. अलग आ रही है, मेरी हाँ। वैल्यू 3.088 आ रही है, 3.088 इंटू 10⁻⁻⁶। क्या किया बाबा गड़बड़ा आपने? देखो 14 इंटू 22 करो, डिवाइड बाय इसका ये नहीं अलग सर, करो। मतलब मैंने क्या हाँ। किया कि जो वैल्यूज है ना उनको मैंने मतलब 0.35 इंटू 10⁻³ किया है। मतलब मैंने 35 का जो, मतलब आपने 35 लिया ना, आपने डेसिमल हटाया, मैंने डेसिमल नहीं हटाया, मैंने तो क्या फर्क 0.35 पड़ता को है? वैसे। उससे क्या फर्क पड़ता है? आंसर तो वही सर आएगा ना बेटा। एक्चुअली सर सर एक बार बोलिए ऐसे बच्चा। करके दिखाना। सर पाई की वैल्यू 22/7 लेनी चाहिए, फिर ही 8 इंटू 10⁻⁻⁶ आएगा, नहीं तो वो पॉइंट में आएगा आंसर बहुत। सर ठीक है, तो पाई डजंट की मैटर ना। वैल्यू सर Yes. 22/7 ली तो 22 कट हो जाएंगे सर और फिर गलती समझे मेरी। करेक्ट 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 करेक्ट। हाँ, यहाँ पे 22/7 ले लो, फिर वो 22 कट हो जाएगा और 7 ऊपर आ जाएगा, 7 इसको मल्टीप्लाइड हो जाएगा, बराबर है, तभी पूरा आएगा। ठीक है, करो, वैसे भी चलेगा। सर मेरे को मेरी गलती पता चल गई। हाँ, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, अगला न्यूमेरिकल 14 नंबर का। यस और नो? यस सर। यस सर। क्वेश्चन 14 सबने कॉपी कर लिया? ऑल स्टूडेंट्स हैव कॉपीड दिस? क्यों Yes, sir. बाहर जा रहे, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। 44, ठीक है चलो। important concept चालू है, don't bunk any class of physics. Okay, if two conductors x and y of circular cross section have radii in the ratio of 1:2, तो यहाँ पे दो कंडक्टर है, two conductors x and y, okay, जो भी रेडियस का रेशियो है r1 अपॉन, और rx बोल सकते हैं हम लोग उसको, तो rx अपॉन ry इज इक्वल टू, that is 1/2, 1/2, then the length in the ratio lx upon ly in the ratio 1/3, and resistivity in the ratio rho x upon rho y in the ratio 3/1. What they ask to find the ratio of their resistance. तो हमको फाइंड करना है, to find rx upon ry, क्वेश्चन मार्क। आप सॉल्व करोगे या मैं सॉल्व करूं? सर हम करते हैं। सर हम करो करेंगे। बेटा, करो करो करो। डोंट रेफर द मॉड्यूल, मॉड्यूल में मत देखो, अगर नहीं आ रहा तो मैं सॉल्व करने वाला हूँ, लेकिन खुद को चीटिंग मत करो आप लोग। सर बोलिए। सर इन द प्रीवियस क्वेश्चन वो मतलब उसका जो था ना सर, वो 3.14 डिवाइड बाय मैंने 2.2 किया सबसे पहले, तो भी अलग ही हो रहा है। कोई बात नहीं।
सर इट इज 4:1. जस्ट कॉपी कर लो. सर मेरा भी सेम आंसर आया, मैंने डायरेक्टली रिड्यूस कर लिए टर्म्स. चलेगा चलेगा. अगर जिसको भी डाउट है तो पूछ सकते हो, सर वापस एक्सप्लेन करो करके. देख लो एक बार बोर्ड पे, अगर नहीं समझ में आ रहा है यू कैन डू इट. एवरीवन गॉट इट? हो गया? यस Yes, sir. सभी बॉयज गर्ल्स, समीक्षा, कमरे. सर Yes, मेरा sir. अभी पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर अभी करेक्ट आ रहा है. ओके 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 ओके, नो प्रॉब्लम. श्रेयस मोरखड़े, समझ में आया बेटा? श्रेयस, Yes, sir. अच्छा ये लोग नहीं आए क्या? प्रणव बोइटे, अनव अहिरे, अनय अहिरे, इशिता जैन, तो तीनों एब्सेंट है.